Okay, good evening, everyone. The very first thing that I want to tell you is that critical reasoning. Why are we studying it? The core learning, the core identity, the core idea as to why critical reasoning is important is because you have to inculcate the learning. You have to inculcate the idea कि यार आखिर क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसा क्या है. ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग ऐसी कौन सी चीज हमको बताती है दैट वी कैन use in the exam scenario. Now you might be thinking why I'm saying this to particularly exam scenario is because the way you think in an exam, exams like CAT, ZET, NMAT, GMAT, they want a person who can think critically in a way that is guys, just a second, right? Just give me a minute. uh, हमारी क्लास चालू हो गई है. Okay. They want you to think in a manner कि whatever data you have been given, है ना, supposedly आपको, I would say, मान के चलो, आपके सामने उसने एक आइडिया पुटअप कर दिया. ठीक है, नाउ दे वांट कि आप उस आइडिया से कुछ लर्निंग निकालो. If it is saying that you have to find out the learning from that particular idea, you need to have the capability कि आपको सोचना कैसे है. How would you think? What would be the prospects on the basis of which you would be thinking? ठीक है, अगर आप सोच रहे हो तो आपकी बैकिंग थ्योरीज क्या है? What are your backing theories? बैकिंग थ्योरीज यही जो पूरा आप लोग को डॉक्यूमेंट भेजा गया था ना, दीज आर द बैकिंग थ्योरीज. एंड व्हाई एम आई सेइंग ये जरूरी है बिकॉज ये हमारी खुद की 3-4 साल की लर्निंग है जो हमने खुद बनाई है बाय स्टडिंग फ्रॉम 7-8 डिफरेंट मेंटोर्स. उनकी लर्निंग जो है हमने खुद इनकलकेट की. देन आई डिवाइज्ड अ डॉक्यूमेंट एंड वो चीज़ आपको भेजी गई है. विच इज़ व्हाई आई टोल्ड यू ऑल कि जब आप क्लास आओ तो ये बैकिंग थ्योरीज, ये जो भी फ्रेमवर्क्स इनको पढ़ के आना. बट नो वरीज, मैनी वर सेइंग कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी. विल डील विद दैट. Now, you have some backing theory, and on the basis of this entire crux that you have made, you are thinking in a critical way. And this is what is called critical thinking. Time कितना कम ले रहे हो आप? Time should be less. Effect इसका जो है, effect should be maximized. And this is what critical reasoning is all about. Basic understanding clear है why we are studying critical reasoning. Why is it important for us to study this? Yes or no? Yes, Casey. Okay, fine, perfect. Then, considering that, I'll move on to the final thing. Basic structure of an argument. आपके पास आर्ग्यूमेंट, पहले तो देखते हैं आर्ग्यूमेंट होता क्या है. ठीक है, मान के चलो ये अपना पूरा एक कैट या जो भी पैसेज एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है, बीट एनीथिंग, आपका ये एक पैसेज है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट पैरा, दिस इज पैराग्राफ नंबर 1, दिस इज द सेकंड पैरा, this is the third para, and this is something, the ultimate paragraph. Now what is the argument? You are you able to see these lines that are mentioned in this? ये जो lines हैं, these are considered as the basic arguments. Now I know आप बोलोगे सर डेफिनेशन में तो आपने कुछ और दिया था, आप यहाँ पे कुछ और दे दिए. I'm not able to understand कि आखिर ये है क्या, आप कहना क्या चाह रहे हो. You're not able to understand that. You might be thinking, please understand why am I saying कि ये जो statements हैं, ये जो sentences हैं, आपके argument है, because ideally देखा जाए, मान के चलो यहाँ पे आपके multiple sentences given है. ठीक है, supposedly overall paragraph में there are, एक example के तौर पे 28 sentences हैं. ठीक है, इन 28 sentences का पहली चीज, there can be 28 arguments,
दिस इज फॉर समवन हु डजंट नो आर्ग्यूमेंट, प्रीमाइस, कंक्लूजन, फ्रेमवर्क्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है, उसके लिए यही 28 सेंटेंस आर्ग्यूमेंट बन जाते हैं. देन दिस वाज द स्टेज नंबर 1. ये आपका स्टेज 1 है, ठीक है. देन कम्स द पार्ट, इनमें से आपने 14 आर्ग्यूमेंट्स निकाले. ये छोड़ो, आर्ग्यूमेंट नहीं यूज करते हम. आपने 14 स्टेटमेंट्स निकाले. दिस वाज स्टेज नंबर 2. एंड इन द थर्ड पार्ट, अब आप इसके बेसिस पे 5 से 6 फाइनल स्टेटमेंट्स निकाल रहे हो. एंड दिस इज द फाइनल स्टेज. तो ओवरऑल अपना जो आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के लैंग्वेज में अगर देखें, एन आर्ग्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ दीज 5 to 6 फाइनल स्टेटमेंट्स. दिस इज व्हाट आर्ग्यूमेंट इज. अभी इतना पार्ट क्लियर है? अभी तक जो बताया उसमें कोई भी डाउट? किसी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो आपने लाइन रिड्यूस करते गए ना, हाँ जी. तो मैं अभी अज्यूम कर लेता हूँ कि ये फाइनल स्टेटमेंट है, ठीक है, फॉर द राइट टाइम बीइंग, क्योंकि राइट राइट राइट. आगे. लेकिन जैसे मतलब कोई भी पैराग्राफ दिया रहता, मतलब दो, एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ, क्रिटिकल रीजनिंग में तो जनरली दो ही, मैक्सिमम दो पैराग्राफ रहते हैं, ठीक है. ठीक है. तो स्टार्टिंग जैसे वो करते हैं कोई भी स्टेटमेंट से, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हैं, तो मैं बेसिक में हूँ तो मैं मान लूंगा कि वो आर्गुमेंट उन्होंने पुट किया. राइट राइट, परफेक्ट. अब उसका जो क्रक्स है, मतलब क्रक्स जो आएगा पहला पैराग्राफ का, तो क्या हम उसको बोलते हैं फाइनल स्टेटमेंट? अभी अभी हम बस ये पूछ रहे हैं आपसे, आपको ये स्टेप्स क्लियर है, हाँ या ना? हाँ. ठीक है, ओके, आगे हम्म. बढ़ते हैं. ठीक है, चलो. वो समझ में नहीं। एक सेकेंड. अब हमने जो इतना पूरा लंबी चौड़ी रामायण रच दी, ठीक है, उसके बेसिस पे अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा है दैट आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू प्रेमाइस प्लस कंक्लूजन. ठीक है. एक आर्ग्यूमेंट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, ठीक है. अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मेट देखें एक आर्ग्यूमेंट का, दैट इज इट मूव्ड फ्रॉम प्रेमाइस टू अ कंक्लूजन. ये एक बेसिक आइडिया होता है हमारे, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक आर्ग्यूमेंट का, ठीक है. अब आर्ग्यूमेंट बनता किन चीजों से है? प्रेमाइस से और कंक्लूजन से, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये प्रेमाइस क्या होता है? इट इज समथिंग विच एक्ट्स एज एन एविडेंस और अ रीजन, ठीक है. सेकंड थिंग, ये कंक्लूजन क्या होता है? अगर हम इसी का दूसरा पार्ट देखें, तो कंक्लूजन क्या होता है? इट सेज दैट पूरे स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में ना, आपके पूरे पैसेज में सिर्फ एक ही मेन चीज होगी, मेन क्लेम और मेन आइडिया, ठीक है. एंड इस चीज को हमारे जो ऑथर भाई साहब हैं, ही वांट्स कि आप इसको बिलीव करो, यू शुड बिलीव दिस. तो ये जो बिलीफ है ना, दिस इज कॉल्ड कंक्लूजन. शुरुआत कहाँ से होती है? प्रेमाइस से हुई. प्रेमाइस से कंक्लूजन तक जाने की जो जर्नी है, प्रेमाइस से कंक्लूजन तक जाने की जो आपकी रास्ता है, दैट इज कंसिडर्ड एज एन आर्ग्यूमेंट. इतना क्लियर है? हाँ. ओके. नो सर। मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, ठीक है. प्रेमाइस का मतलब क्या होता है? आपके पास कुछ दिया हुआ है आपके सामने, यू कैन सी समथिंग इज गिवन टू यू, है ना. आप उसको अच्छे से देख रहे हो. देयर आर स्टेटमेंट्स, एग्जांपल, समथिंग समथिंग एक्स वाई जेड, ठीक है. जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम आइडेंटिफाई कर करके बताएंगे प्रेमाइस क्या है, कंक्लूजन क्या है, सारी चीज पता चलेंगी, ठीक है. आगे देखते हैं. एक आपको एविडेंस दिया, कुछ रीजनिंग है आपके पास, दैट यू आर कंसिडरिंग एज प्रेमाइस, कि भैया इसके बेसिस पे अब मुझे किसी चीज के बारे में सोचना है, इसके बेसिस पे अब मुझे किसी चीज के लिए आगे बढ़ना है. ओके, अंडरस्टूड. आगे बढ़ते हैं. कंक्लूजन क्या होता है? पूरे पैसेज में ना सिर्फ एक ही मेन आइडिया होता है, एक ही मेन क्लेम होता है पूरे पैसेज में. एंड दैट इज व्हाट द ऑथर वांट्स यू टू बिलीव. द ऑथर वांट्स कि भैया आप उस चीज को सोचो कि हाँ ये सही है. यही आपके लिए जो है, यही आपका भगवान है. ऑथर चाहता है कि आप उसको वैसे ट्रीट करो. तो ये जो भगवान है ना, यही आपका कंक्लूजन हो जाता है. इतना क्लियर हो गया? हाँ. ओके, फाइन.
अब थोड़ा सा इसका कोरिलेशन देखते हैं, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बीइंग फ्रेम्ड एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स इज दिस बीइंग फ्रेम्ड। प्रेमाइज बोलता है कि भैया मेरे पास रीजंस हैं जिसके बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो ना, अपने कंक्लूजन को सपोर्टिंग ग्राउंड दे सकते हो। प्रेमाइस ये बोलता है। कंक्लूजन क्या बोलता है, दैट देख यार मेरा एक पॉइंट है जो ऑथर चाहता है कि तू बिलीव कर, ठीक है। मोर और लेस आप इसको मेन आइडिया भी कंसिडर कर सकते हो। इतना क्लियर है? हाँ। यस ठीक है, सर। ओके। आर्ग्यूमेंट में इसके होने की भूमिका क्या है, व्हाई एग्जैक्टली इज दिस पर्टिकुलर थिंग इन द आर्ग्यूमेंट, सेंस क्या है उस चीज का। द premise exists because it is providing a logical support. Since you're an MBA aspirant, obviously it is pretty much understood that there has to be logic in whatever you are doing, right? तो उन लॉजिक्स के बेसिस पे ना आप अपने कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो, which is why the premise is considered as a logical support in an argument। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आई एम रीटरेटिंग premise प्लस कंक्लूजन। कंक्लूजन समझ गए, प्रेमाइस समझ गए, अब आते हैं एविडेंस पे कि यार आखिर ये एविडेंस है क्या। आपके पास मान के चलो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ गिवन है, ठीक है। उस पैराग्राफ के बेसिस पे यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, यू आर ट्राइंग टू मेक एन एनालॉजी, यू आर ट्राइंग टू मेक एन अंडर यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, अ फ्रेमवर्क कि भैया आखिर इसने ये इतने बड़े पैराग्राफ में इसमें इतने से पॉइंट में इसने क्या लिखा है, ठीक है। तो एविडेंस का रोल क्या होता है, पहले तो देखते हैं एविडेंस होते क्या है। एविडेंस कैन कंसिस्ट ऑफ डेटा, कुछ आपको थ्योरी दे दी, ठीक है, कि 1994 में ऐसा कुछ हुआ था एंड दैट समथिंग दैट हैपेंड इन 1994 लेड दिस टू पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स देगा। 2021 के सेंसस में माना गया था कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो समथिंग लाइक 5000 रुपीज है, ठीक है। ये हो गई स्टैटिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स जो आपके प्रेमाइस को सपोर्ट कर रहे हैं। अब 2021 के सेंसस में माना गया कि 5000 हमारी इनकम का वो है, ठीक है। ये जो 5000 उसने बोला ना, 5000 पर कैपिटा इनकम है, दैट इज व्हाट इन एग्जाम्पल दैट इज बीइंग सपोर्टेड। ये क्लियर हुआ? नो सर। ओके फाइन, नो वरी, आई एम गोना शेयर। कोई नया एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है। सपोजिटली एक बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है, दैट वाज रिटन बाय सन तzu, ठीक है। उसने एक बार एक चीज बोली थी कि the citizens wealth which is used to launch a military campaign refers to the wealth of citizens back home। अब ये हो गया हमारे पास एक पूरा प्रेमाइस हो गया, ठीक है। या मान के चलो ये आर्गुमेंट ही कंसिडर करते हैं इसको, प्रेमाइस छोड़ो, भूल जाओ, अभी प्रेमाइस नहीं है ये। दिस इज एन आर्गुमेंट, हम इसको लिखते हैं पहले, ठीक है। राइट दिस अप, ध्यान से बस इसको ना समझने की पहले कोशिश करना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ, ठीक है। द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेमाइस टू कंक्लूजन, that is the argument। Premise is something that gives an evidence or a reason to support the final conclusion। What is a conclusion? The main point that the author wants you to believe कि भैया देख ये जो पूरी रचना की गई है ना पैसेज की, इसलिए की गई है। This is why I have written this passage, ठीक है। एविडेंस क्या होता है अभी करके बताते हैं उसको, चलो। Sun Tzu has said that the citizen's wealth, बहुत ध्यान से देखना ना, I'll give you guys only 60 seconds, उसके बेसिस पे आप लोग आइडेंटिफाई करना एंड देन यू टेल मी, ठीक है। द सिटीजन्स वेल्थ दैट इज यूज्ड टू लॉन्च लॉन्च अ मिलिट्री campaign refers to the sorry refers to the wealth of citizens back home। Now you guys only have 60 seconds, try। I don't want the correct answer, I'm not saying कि मुझे सही आंसर दो, only I'm saying is कि कोशिश करो इसमें आइडेंटिफाई करने की, and your time starts now।
एंड योर टाइम्स अप। क्या समझ में आया बताइए? Any wild guess. I don't want the correct answer. I just want a wild guess. सर इसका मीनिंग बताना है। नहीं नहीं, आई एम आस्किंग कि इसमें अभी तक जो अपन किए ना प्रेमाइज कंक्लूजन एविडेंस, वो नो हमें सर। आइडेंटिफाई करके बताओ इसमें यदि है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्या नहीं है, वो चीज बताओ। सर इसमें कंक्लूजन दिया है, इसका प्रीमाइस नहीं दिया है सर। ठीक है, परफेक्ट। एंड प्रेमाइज इसमें नहीं है, एकदम सही। सर इसमें एक कंक्लूजन है ये तो। ठीक है, एक फाइनल कंक्लूजन है स्टेटमेंट इसमें। ही। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, where's the evidence? Is the evidence present in this or not? नो सर, एविडेंस मोस्ट नहीं ऑफ सर, डाटा इस एविडेंसेस पर तो एविडेंस तो नहीं लग रहा है। नहीं। ओके, मतलब एविडेंस भी नहीं है। नाउ who all are there? I'm gonna make a score, है ना? अगर हम ये बोलें कि the citizens wealth that is used to launch a military campaign refers to the wealth of citizens back home because, या कुछ भी हम इसमें लिख दें, because the war needs monetary terms to be executed। अब बताओ इसमें प्रेमाइस क्या है? सर अभी बिकॉज ये लिखी ना, बिकॉज टू एक्सटेंड वही है। सॉरी, सर अभी लिखा है ना, द मिलिट्री द वार नीड्स मॉनिटर टर्म्स टू बी एक्सटेंड, ठीक है, वही प्रीमाइस है। ओके। मतलब प्रेमाइस का मतलब क्या हुआ जो हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा? ठीक है, दैट इट इज गिविंग अ रीजन टू सपोर्ट अ कंक्लूजन। अभी तक हम जब यहाँ तक की बात कर रहे थे, व्हेन आई वाज डीलिंग विद दिस पार्ट, आई वाज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन, आई वाज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रेमाइस, आई वाज नॉट हैविंग एनी एविडेंस, बट आई हैड द कंक्लूजन इन दैट, है ना? कंक्लूजन कब आया आपके पास? व्हेन डिड द कंक्लूजन कम और व्हेन डिड द प्रेमाइस कम? जब आपके पास ये रीजनिंग आई, मतलब नाउ यू हैव अ रीजनिंग टू बैक योर थ्योरी। तो अभी क्लियर है प्रेमाइस में क्या होता है? यस सर। ओके, जस्ट अ मिनट ना। हेलो भैया, वहीं गार्ड भैया को दे दीजिए, है ना? हम थोड़ी देर में आके ले लेते हैं। ओके भैया, थैंक यू। चलो सर, ये तो समझ गए, है ना? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अब इससे, बहुत डिस्कशन हो किस गया हाँ जी। थोड़ा सा मैं एक चीज हाँ पूछना हाँ, चाह रहा था बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। यहाँ पे क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट होगा, उसका लॉजिकल रीजनिंग जो दिया जाएगा हम्म, वो ही प्रेमाइसेस होगा, जो लॉजिकल बिल्कुल रीजनिंग हम पुट बिल्कुल कर बोल रहे हैं। सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यू कैन फेयरली से दैट, देयर इज नो इशू इन इट। आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ हाँ। ओके फाइन। अब जैसे यहाँ पे अपन को एग्जांपल्स गिवन है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन। ठीक है, ये अपना प्रेमाइस है। अच्छा, हमें इसमें ये बताओ, व्हाई इज दिस अ प्रेमाइस? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन, पेट्रोल व्हीकल्स आर अ मेजर कॉज ऑफ अर्बन एयर पॉल्यूशन। व्हाई एग्जैक्टली इज दिस अ प्रेमाइस? थोड़ा सोचो, टेक टेक 2 मिनट्स, डोंट रश, है ना? 2 मिनट लो, सोचो एंड देन आंसर करना। हेलो, हाँ भैया, हाँ जी हाँ जी भैया, रख लो, हम थोड़ी देर में आके ले लेते हैं। विष्णु या वीडी शुक्ला, वो एक ही है। विष्णु दत्त शुक्ला इज वीडी शुक्ला, दोनों एक ही आदमी है।
हाँ जी, हाँ जी। Shall we start? यस सर। Okay. सर इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्रीमाइस हाँ, बताइए बताइए, चलो बताओ। वो प्रीमाइस क्यों है कि वो बता देगा है कि क्या होता है, क्यों होता है, देन व्हाइट क्या होता है, क्यों होता है, देन कॉन्सिक्वेंसेस एंड रूट कॉजेस ऑफ द ठीक है, कंक्लूजन। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली कंक्लूजन ये था कि सिटी शुड इनकरेज द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ठीक क्यों है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमें इनकरेज करना चाहिए, उसका आंसर उस प्रेमिसेस में था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूसेस लेस पॉल्यूशन। और ठीक है। दूसरा वाला भी उस मतलब उसी को सपोर्ट कर, और दूसरा वाला बोल रहा है कि भाई जो दूसरा टाइप का पेट्रोल व्हीकल है वो जो है मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, और हम पॉल्यूशन कम करना चाहते हैं। राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी प्रिमाइस कंक्लूजन में अपने को जो डिफरेंस था वो क्लियर हो चुका है। यस सर। हाँ। अब तो कंफ्यूज नहीं होगा जब पैसेज में आएगा या सीआर के एक्सरसाइज में आएगा। हम्म। यस सर। चलिए ठीक है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर द कोर लॉजिकल एलिमेंट्स इन सीआर? पहली चीज, ठीक है, समझते हैं, एक एक से समझेंगे। द वेरी फर्स्ट इज फैक्ट, अ स्टेटमेंट दैट कैन बी वेरीफाइड। मान के चलो एक मैकेंजी की रिपोर्ट निकलती है, ठीक है, मैकेंजी ने रिपोर्ट निकाली दैट द एम्प्लॉयमेंट रेट with respect to 2023 has been increased by 27.5%. मैकेंजी ने ये रिपोर्ट निकाली, ठीक है ना। व्हाई कैन आई से दैट दिस इज अ फैक्ट? बिकॉज पहली चीज, आपके पास कुछ डेटा है जिसके बेसिस पे यू कैन बैक योर थ्योरी, ठीक है। यू हैव समथिंग, आपके पास एक मैकेंजी की रिपोर्ट है, मैकेंजी इज अ वेल रेप्यूटेड कंपनी, ठीक है। उसके रिपोर्ट ने बोला कि भैया देखो, एम्प्लॉयमेंट का जो रेट था 2023 के बेसिस पे यदि देखें तो वो अभी 27.5% से बढ़ गया है। सो एनीथिंग दैट कैन बी वेरीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ any document, on the grounds of anything that is available to you as of that moment, is considered as a fact. जैसे यहाँ पे दिया, इंडिया लॉन्च चंद्रयान 3 इन 2023। अब आपको पता है 2023 में ये चीज हुई है। यू हैव सम सॉर्ट ऑफ थ्योरी, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ, आई वुड से आपके पास कुछ एविडेंस है इसका, and that is a verified evidence, which is why you can say that this is a fact. The second thing is claim। क्या होता है? Arguable statement that needs the support। एक ऐसा statement, ठीक है, जिसमें कुछ डिबेट चल रही हो, ठीक है, जिसका ना आपको प्रोज पूरा पता है और ना ही आपको उसके कॉन्स पूरे पता है। यू कैन नॉट कम टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? जब इसके पास में एक कोई आपको सपोर्टिंग एलिमेंट मिलेगा। जैसे हम यहाँ बोलते हैं ईवीज आर बेटर देन पेट्रोल कार्स बिकॉज ईवीज डू नॉट डू पोल्यूशन। तो अब ये है अब ये हमारा एक क्लेम बन गया। ये क्लियर है? नो सर। नहीं हुआ? नहीं सर, क्लेम है तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन सर। वापस बताते हैं। एक क्लेम ऐसी चीज होती है जिसमें अभी एज ऑफ नाउ बहस चल रही है, ठीक है। एंड व्हेन एनी सपोर्टिंग ग्राउंड और सपोर्टिंग स्टेटमेंट इज गिवन टू दैट, that becomes the final statement, that final statement is considered as a claim। अब क्लियर है? यस सर। पक्का? देखो नहीं नॉट होगा हम मच। वापस बताएंगे। नाउ रिपीट सर। ठीक है, देखिए, मान के चलो आप और आपका भाई है, ठीक है, दोनों में बहस चल रही है, यस सर। ठीक है। अब दोनों के बहस में आप बोलते हो यार देख मेरे पास ना जो गाड़ी है वो ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये ईवी है। यस सर।
अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है ईवी की? इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉल्यूशन नहीं करता, दैट इज व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज। यस सर। ठीक है, आपने ये बोला, आपका भाई बोला नहीं पेट्रोल अच्छा है, क्योंकि पेट्रोल का जो वो है फ्यूल का बर्निंग रेट है वो ज्यादा होता है, वो पिकअप अच्छा देती है, वो टॉर्क ज्यादा जनरेट करती है। बट आपको जो आर्गुमेंट करना था वो करना था किसके बेसिस पे? पॉल्यूशन के बेसिस पे, एनवायरनमेंट के बेसिस पे। तो आपने हाँ उसके सर। बेसिस पे किया, विच इज वाई नाउ आपका जो स्टेटमेंट है वो एक क्लेम हो गया। अब क्लियर है? हाँ सर, वो पकड़ पे है। पक्का? यस सर, क्लियर। अब आता है असर्शन। अचानक से क्या हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन का जो अभी जैसे अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन का जो ट्रैजेक्टरी थी वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एक आदमी आता है, बोलता है कि यार देख, ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्यूचर। आइडियली यदि देखा जाए तो नहीं बोलना चाहिए उसको ये चीज, है ना? बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बताओ। बोलना चाहिए था सर। ठीक है, नॉर्मली बस उसने ऐसे ही बोल दिया ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दैट इज कमिंग with a confidence, that is coming without a proof, will be considered as an assertion of the author. अच्छा। इसको समझ गए? यस सर। नेक्स्ट कम्स जजमेंट। अभी आपको ये पकड़ते हैं, आपका भाई है, आप बोले EVs आर बेटर देन पेट्रोल कार्स। ठीक है, यस अब सर। आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, आपके भाई की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, दोनों उसके गुड और बैड बताओगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट गुड एंड बैड, जो आपका स्टेटमेंट डिवाइस होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ जजमेंट। आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक जो बेसिक एलिमेंट है, जो बेसिक सेंटेंस है, उसको आप कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग निकाल के ला रहे हो, दैट इज व्हाट जजमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कैसे यहाँ पे। I'll say this again. आपको पहले से कुछ पता है, ठीक है, आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है किसी चीज के लिए। अब उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप अपने खुद के ही कंक्लूजन निकाल रहे हो। हम्म। जैसे यहाँ पे बोल दिया दैट ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर देन क्लासरूम लर्निंग। पर्सन ए शायद ऑनलाइन पढ़ा हो बचपन से, हम्म। पर्सन टू शायद ऑफलाइन पढ़ा हो बचपन से। इन हम्म। दोनों को नहीं पता कि यार प्रोज एंड कॉन्स हैं क्या, बट इनको हम्म। लगता है कि ये बेस्ट है। अच्छा। ठीक है, तो हम्म। एनीथिंग दैट इज कमिंग ऑन द ग्राउंड्स कि भैया मेरे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं ये समझता हूँ, लिखा नहीं होगा हम्म। वहां पे, वो आपको समझना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट अ जजमेंट इज। ये क्लियर है? हम्म। चलो, प्रेमाइस अपन देख लिए, कंक्लूजन अपन देख लिए। प्रेमाइस वर्सेस एविडेंस, ठीक है। प्रेमाइस और एविडेंस में ना, अगर प्रेमाइस है और एक एविडेंस है, ठीक है, देखने में ना आइडियली कभी कभार क्या होता है, सेम ही लगते हैं ये। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? पहला, प्रेमाइस बोलता है मेरे पास देख लॉजिक है। अगर मैंने कुछ बोला है, मान के चलिए मेरा कंक्लूजन है, ठीक है, तो मेरे पास उसका लॉजिक भी तो है, इसलिए मैंने बोला है। एविडेंस क्या करता है? एविडेंस इस प्रेमाइस को सपोर्ट करता है, मतलब एविडेंस जो है वो प्रेमाइस का पार्ट बन गया। ये क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ठीक है, इसमें। वापस हम बताते हैं। दिस इज योर premise, this is your logic, this is your conclusion। चलो, प्रेमाइस बोलता है देख भाई मेरे पास ना लॉजिक है, उसके बाद तू अगर कुछ कंक्लूड करेगा तो तेरी जो रीजनिंग है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। प्रेमाइस ये बोला, ठीक है। एविडेंस क्या बोलता है?
यार देखो, मैं कोई डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ? मैं एक ऐसा डेटा हूँ या एक ऐसा प्रूफ हूँ जो प्रेमाइस को सपोर्ट करता है। अच्छा, तो ये हमेशा डाटा में रहेगा या तो प्रूफ, मतलब हमेशा वेरीफाइबल रहेगा? वेरीफाइबल रहेगा एविडेंस। आपको जो दिया है डेटा, उस डेटा के बेसिस पे आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। हम्म, एंड एविडेंस इज समथिंग दैट कैन ऑलवेज बी वेरीफाइड ऑन एनी ग्राउंड। अच्छा, ठीक है, ठीक। चलो। प्रेमाइस बोलता है मेरे पास कंसेप्ट्स हैं, एविडेंस बोलता है मेरे पास फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या होते हैं? अ स्टेटमेंट दैट कैन बी वेरीफाइड। इंडिया लॉन्च चंद्रयान 3 इन 2023। एविडेंस बोलता है देख भाई, मेरे पास वो फैक्चुअल सपोर्ट है। प्रेमाइस बोलता है ठीक। मैं आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर का पार्ट हूं। एविडेंस बोलता है मैं प्रेमाइस के पास रहता हूं उसको वैलिडेट करने के लिए। हम्म, तो अभी इसमें जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई ए कंक्लूजन। अगर एक पैसेज पढ़ रहे हैं आप तो पैसेज को पढ़ते समय आप फाइनली एक ऐसे एलिमेंट पे आओगे जहां आपको लगेगा कि यार अब शायद पैसेज अपने एक ट्रेजेक्टरी को बदल के एंड पे लेके आ रहा है। Every time that will consist of these some sort of common conclusion indicators. Therefore, thus, hence, consequently, so clearly, this shows that अगर ये सारी चीजें आपकी गिवन है, अगर ये सारी चीजें आपको उसमें दिख रही हैं, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए कंक्लूजन। जैसे यहाँ पे है that people who exercise regularly have a lower heart disease risk. Exercise also improves mental health. Therefore, इसके बेसिस पे अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो हमारे ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करती है। अब क्लियर है? हम्म, That conclusion is यस सर। nothing but the last statement that is given in any paragraph or in any passage. That is what conclusion is. Now, assumption framework, this is a very vicious one, I'm telling you. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना। सबसे ज्यादा ना ट्रैप्स इसी में आते हैं। जैसे आई गेस प्रैक्टिस ड्रिल 7 या प्रैक्टिस ड्रिल 8 देखे होगे आप लोग, तो उसमें आई गेस एक assumption का क्वेश्चन था। हम्म, देखते हैं। assumption क्या होता है? It is an unstated premise that is required for the argument to work. लिखा नहीं होगा वो, ठीक है। मान के चलो ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने सारी चीजें लिख दी। ये पूरा आपका पैसेज गिवन है, लिखा हुआ है सारी चीजें। असम्पशन क्या होता है? ये एरोज दिख रहे हैं? हाँ, एरो तो दिख रहा है। These arrows are the assumptions. Bridging the gap. यही आपके assumptions होते हैं। मतलब assumptions आपको आइडियली एक्सप्लिसिटली पैसेज में गिवन नहीं होंगे। Never ever ever in the world the assumptions are given or stated in the passage explicitly, but assumptions are something that you need to find out. You need to find out what exactly is this doing here. याद है शुरू में हमने बोला था फंक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट करता है? दैट वाज जस्ट एन इजी वे ऑफ मी टेलिंग यू कि यार आप लोग थोड़ा अगर इस चीज को फंक्शन 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 करोगे ना तो आगे जाके फिर वो आपको अजम्पशंस में हेल्प करेगा। हमने ये चीज शुरू में ही बोली थी, जो आप लोग आर्टिकल में करते भी हो।
है ना? तो assumption is something that is considered कि यार लिखा नहीं है वो पैसेज में, ठीक है, बट इट इज नेसेसरी, इट इज रिक्वायर्ड। अगर वो नहीं है, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड, उसके बिना तो भाई आपका जो प्रेमाइस आर्गुमेंट जो भी है एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज और होती है, इफ assumption इज फॉल्स द आर्गुमेंट कोलैप्सेस। ये उसका टेस्टिंग टेक्निक होती है, देखेंगे वो नेक्स्ट स्टेज, यहाँ की बात है वो, पहले देखते हैं। प्रेमाइस गिवन, कुछ डाउट है? नहीं नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। Okay. The premise is saying that company profits are increased after remote work started. That is the premise. ठीक है, ये कंपनी का प्रॉफिट क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि रिमोट वर्क स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ पे बिकॉज नहीं था, बट आफ्टर था। सो ऑन द बेसिस ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, माई बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हमको ये समझ में आया कि भैया ये उस चीज के बारे में बोल रहा है कि यार देख, कंपनी के प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि रिमोट वर्क स्टार्ट हो गया, विच इज वाई इट इज अ प्रमाइस। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन, रिमोट वर्क इंक्रीज्ड कंपनी प्रोडक्टिविटी। ओके, इसके बेसिस पे हम क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। कैन आई से दिस? ऐसा हाँ। कहीं देखे हो क्या कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और प्रॉफिट घट रहे हैं, या फिर नहीं नहीं प्रॉफिट बढ़ रहा है प्रोडक्टिविटी घट रही है? ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। नहीं नहीं। दे बोथ आर डायरेक्टली कोरिलेटेड टू ईच अदर। हम्म ठीक है, चलो, प्रिमाइस हो गया, कंक्लूजन हो गया, अब पकड़ते हैं अजम्पशन। ध्यान से देखना, कंपनी का प्रॉफिट जो है, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, चलो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। दिस इज योर प्रॉफिट, दिस इज योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और बिल्डिंग ब्लॉक क्या है आपका? कंपनी है। ठीक है, अभी आप लोग खुद ही बता दोगे, हमको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो कंपनी कहाँ रहेगी? ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी, प्रॉफिट सब ठीक है, कुछ ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट घटे, प्रोडक्टिविटी घटी, कंपनी कहाँ जाएगी? नीचे। नीचे जाएगी। तो ये जो पूरी चीज है वो किसके बेसिस पर? ये कंपनी में कौन है? कौन है कंपनी में? ये कौन कर रहा है? प्रॉफिट कौन बढ़ा रहा है? प्रोडक्टिविटी कौन बढ़ा रहा है? कौन काम कर रहा है? वर्कर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्कर्स कर रहे हैं। तो कैन आई से दैट वर्कर्स आर वेरी मच प्रोडक्टिव, विच इज व्हाई प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग। हाँ। वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, विच इज व्हाई द प्रॉफिट अल्टीमेटली इंक्रीज्ड, एंड हाँ। विच इज व्हाई कैन आई से दैट एम्प्लॉइज वर्कड मोर एफिशिएंटली रिमोटली, जिसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और उसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ गया। हम्म तो इन दोनों के बेसिस पे हमने ये अजम्पशन निकाला। हम्म ये क्लियर है? हम्म पक्का? अच्छे से देखो, हम्म अजम्पशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, अच्छे से होना। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। यस सर, चलो, क्लियर। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। अजम्पशन को आइडेंटिफाई करते कैसे हैं? ठीक है, नेगेशन टेस्ट। आइडेंटिफाई अजम्पशन वाला ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। ठीक है, कुछ कुछ डेटा इसमें गिवन है। मान के चलो आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये ऑप्शन। अब इसमें लिखा है दैट, मान के चलो ये काम कैसे ऐसे होगा, तो ट्राई टू नेगेट ये काम ऐसे नहीं होगा। मान के चलो आपको गिवन है दैट टू फाइंड, लेट मी यूज दिस पेन, टू फाइंड द फ्लॉ यू नीड टू एनालाइज। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट, बहुत सिंपल स्टेटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। टू फाइंड द फ्लॉ यू हैव टू एनालाइज। जनरल लाइफ में भी यही होता है, आपको फ्लॉ अगर समझना है तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब आप एक काम करो, इसको बोलो टू फाइंड अ फ्लॉ यू डोंट नीड टू एनालाइज। अगर आपने इसको निगेट किया,
आपने इस स्टेटमेंट जो अभी पॉजिटिव स्टेटमेंट था आपने इसको नेगेटिव बना दिया, और अगर इसके कारण आपका जो आर्गुमेंट के जो पैर है, मान के चलो ये पैर हैं आर्गुमेंट के, ये कट गए, तो भैया आपका असम्पशन सही निकलेगा, दैट असम्पशन इज करेक्ट। ये क्लियर है? नो सर। चलो हम थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में इसको बताते हैं। अम्म, कैसे बताएं, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो अभी ये सारी चीजें भूल जाओ, ये हमने कुछ नहीं बताया ना, सब भूल जाओ, कुछ नहीं है ये। सबसे पहले देखो करना क्या है, ऑप्शन को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन भी छोड़ो यार, सारे ऑप्शंस को कंसिडर करो कि ये हो सकता है, ठीक है। सब में ढूंढो कि ये मेरा अजम्पशन का फ्रेमवर्क हो सके, मेरा अजम्पशन वाला ऑप्शन हो सकता है, ओके। मान के चलो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, सबसे पहले देखो, एक होता है प्रेमाइस, एक होता है कंक्लूजन, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इनको जो खत्म करने वाली जो चिड़िया होती है, वो होता है आपका अजम्पशन, ठीक है सर। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि यार आपका जो कंक्लूजन आपको गिवन है पैसेज के बेसिस पे, ठीक है, पैसेज कुछ गिवन है मान के चलो, उसका एक कंक्लूजन होगा, उस एक कंक्लूजन के बेसिस पे अब आप सोच रहे हो कि यार मेरा जो फाइनल अंडरस्टैंडिंग है वो ये बन के आई है, ठीक है। सपोज दैट अंडरस्टैंडिंग इज एक्स। अब ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है ना, दैट यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। अब हमें ये बताओ, सपोजिटली अगर हम इसको निगेट करते हैं, ठीक है, अगर इसको हमने निगेट कर दिया दैट यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, और पैसेज बोल रहा है पैसेज वाज ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड, कंक्लूजन बोलेगा सक्सेसफुल पीपल आर द वंस हु हैव वर्कड हार्ड। ऑप्शन में बोलता है यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, इसको नेगेट कर दो, यू नीड टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। आपने नेगेट किया एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को, यू कन्वर्टेड इन अ नेगेटिव स्टेटमेंट। Ideally this statement was existent in a positive sense, but what you did, you just entirely you devised this argument in such a way कि अब ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है ये नेगेटिव साइड में चला गया है। सो इफ योर कंक्लूजन क्या था, दैट सक्सेसफुल पीपल आर द वंस वर्क वेरी हार्ड, या सक्सेसफुल पीपल आर द वंस हु हैव वर्कड हार्ड, ये आपका कंक्लूजन था। आपने ऑप्शन नंबर ए विच वाज द अजम्पशन एज ऑफ यू, एज अंडरस्टूड बाय यू, आपने उसको निगेट कर दिया दैट यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। आपने निगेट किया इसको कि भैया यू नीड टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। अगर निगेट करने पे आपका जो आर्ग्यूमेंट है या आपके पास जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो क्रम्बल आपकी हो रही है, ठीक है, आपका जो आपका कंक्लूजन है वो कोलैप्स हो रहा है, देन दैट इज योर अजम्पशन, ठीक है। आइडियली व्हाट आई शुड हैव डन, इसको मान के चलो हमने हटा दिया फॉर अ मोमेंट, आई जस्ट एलिमिनेटेड दिस पार्ट, ठीक है। कंक्लूजन बोलता है सक्सेसफुल पीपल आर द वंस हु हैव वर्कड हार्ड, ऑप्शन इज सेइंग यू नीड टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, लेट्स नेगेट इट, आई एडेड एन एलिमेंट डोंट। अब बताओ अगर हम इसको ऐसे पढ़ें, इज द कंक्लूजन बीइंग कोलैप्स्ड? यस सर। और सिंपल टर्म्स में हम पूछते हैं, चलो अभी मान के चलो फॉर अ मोमेंट दिस वर्ड इज नॉट एग्जिस्टिंग हियर,
ठीक है, सब भूल जाओ, जस्ट रीड द स्टेटमेंट, रीड द कंक्लूजन एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन. It is saying that successful people are the ones who have worked hard. This is the conclusion on the basis of this entire passage that was given to you. ठीक है, आपने ऑप्शन ए देखा, ऑप्शन ए बोलता है दैट यू नीड टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल. कैन आई से मोर और लेस ये दोनों कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन जैसे ही लग रहे हैं? कैन आई से दैट? हाँ. Okay, fine, perfect. Now if that is the case, can I say that if I am adding this one element in this don't, is the conclusion collapsing? मतलब नल हो जाएगा, नल वॉइड हो जाएगा. Null and void हो जाएगा. तो then that is your correct answer. That is what assumption is. मतलब you have to negate it. You have to do the opposite what is being said in the option. अगर बोला गया है ये काम ऐसे होगा, try to negate it by thinking ये काम ऐसे नहीं होगा. इसको करने के बाद अगर आपका वो आर्गुमेंट कोलैप्स हो रहा है, then that is your correct assumption. Example, employees were productive at home. Negate कैसे किए? Employees were not productive at home. Argument weaken हुआ, then that is the correct assumption. मतलब आर्ग्यूमेंट को आपको मारना है एक हथौड़ा. ठीक है, ये मान के चलो आपका हथौड़ा है. ठीक है, आपने इसको मारा एक हथौड़ा और इसके जो पैर थे वो टूट गए. Then that is your correct answer. Okay. अगर पैर टूट रहे हैं हथौड़ा मारने पे, तो भैया वो आपका करेक्ट आंसर है. समझ गए? हाँ. पक्का? Yes, sir. Attacking the premises. ठीक है. अब देखो, अभी तक इतना ही करेंगे अपन 1 से 5 तक, क्योंकि ये जो है ये दूसरा एलिमेंट आ जाता है फिर, स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट. स्ट्रेंथन, वीकन, ठीक है, कॉज इफेक्ट, पैराडॉक्स, रिजॉल्व द पैराडॉक्स, ये सारी चीजें ना फिर स्टेटमेंट बेसिस पे नहीं रहती. अभी जो अपन डील किए वो स्टेटमेंट बेसिस पे था, पैसेजेस के बेसिस पे था. आगे जो अपन डील सर करेंगे, हाँ बताइए. सर अभी तक जो भी हुआ है ना उसका रिवीजन करेंगे एक बार. क्या करेंगे? रिवीजन सर, पहले से ओके रिवीजन. ओके ओके ओके, नो वरीज, करते हैं चलो. बेसिक स्ट्रक्चर आर्गुमेंट का क्या होता है? प्रीमाइस रहेगा, उसमें कंक्लूजन रहेगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ प्रीमाइस? एनी स्टेटमेंट दैट इज एग्जिस्टिंग विथ अ रीजन गिवन टू सपोर्ट अ कंक्लूजन, जिसके पास एक लॉजिकल सपोर्ट रहेगा, दैट इज योर प्रीमाइस. कंक्लूजन क्या होगा? कोई भी मेन पॉइंट या कोई भी मेन आइडिया जो पूरे पैसेज में ड्राइव आउट हो रहा है, ठीक है, इफ दैट इज गिवन एंड दैट इज व्हाट द ऑथर वांट्स यू टू बिलीव, देन दैट इज कंसिडर्ड एज योर कंक्लूजन. एविडेंस क्या होता है? डेटा है, कुछ स्टैट्स गिवन है, कुछ एग्जांपल्स हैं सपोर्ट कर रहे हैं जो प्रेमाइज को, देन दैट इज द एविडेंस. एग्जांपल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन. एक रीजन गिवन है, प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉल्यूशन लेस कर रहे हैं. पेट्रोल व्हीकल्स आर अ मेजर कॉज ऑफ अर्बन एयर पॉल्यूशन. ठीक है, पेट्रोल व्हीकल से क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूशन हो रहा है. Therefore, cities should encourage the use of electric vehicles. ये दो प्रेमाइस है, प्रेमाइस 1, प्रेमाइस 2, इन दोनों के बेसिस पे ये आ गया कंक्लूजन. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. फैक्ट क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी वेरीफाइड, जिसके पास एक एविडेंस है, दैट यू कैन रेफर कि हाँ भाई इसके बेसिस पे मैंने ये चीज बोली है, जो सत्य घटना पे आधारित है. फैक्ट इज एनीथिंग दैट इज सत्य, वो आपका फैक्ट हो जाता है. क्लेम क्या होता है? डिबेट चलती है, ईवीज आर बेटर देन पेट्रोल कार्स. दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, एक बोल रहा है ईवी अच्छी है, एक बोल रहा है पेट्रोल अच्छा है. दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बट जैसे ही उसके पास एक सपोर्टिंग हैंड आ जाता है,
आर्ग्यूएबल स्टेटमेंट नीडिंग सपोर्ट, अभी तक इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आपने बस बोल दिया, ठीक है, देन दैट इज अ क्लेम कि भैया आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अभी तक आपने ये बोला कि ईवीज बेटर है, पेट्रोल बेटर है, ठीक है। असर्शन देखते हैं, स्टेटमेंट मेड कॉन्फिडेंटली विदाउट प्रूफ, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपने बस बोल दिया, आपके मन में आया आपने बोल दिया, दैट इज व्हाट असर्शन इज। जजमेंट क्या है, आप इवैल्यूएट करो ये अच्छा है क्या, ये बुरा है क्या, जिसको बोलते हैं जजमेंटल होना, ठीक है, दैट इज व्हाट जजमेंट इज। प्रेमाइज कंक्लूजन अपन देख लिए, अगेन प्रेमाइज वर्सेस एविडेंस, प्रेमाइज से कंक्लूजन तक जा रहे हैं, ठीक है, प्रेमाइज के पास कुछ डेटा है विच इज लॉजिकल, विच इज व्हाई इट इज अ प्रेमाइज। एविडेंस क्या होता है, evidence exists inside that premise to support that particular statement which we call premise। भैया premise के पास एक evidence है, ठीक है, ये मान के चलो एक स्टेटमेंट के पास एक एविडेंस है तब जाके वो प्रेमाइज बना। इसके पास कंसेप्ट होते हैं, इसके पास फैक्ट्स रहते हैं, ये आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, और ये सिर्फ प्रेमाइज का पार्ट होता है, ये सिर्फ प्रेमाइज का, ये आर्गुमेंट का। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ये वर्ड्स बहुत नॉर्मल है, दिस आप लोग मतलब इसको पढ़ लेना, ठीक है। अजम्पशन फ्रेमवर्क क्या होता है, ये जो एरो देख रहे हो ना, पैसेज गिवन है इतना सारा पैराग्राफ्स, बट कुछ ऐसी चीजें जो अभी लग रहा है कि नहीं यार ये चीज तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, तो दैट इज व्हाट द ब्रिजिंग गैप यू हैव टू आइडेंटिफाई, दैट इज व्हाट अजम्पशन इज, कि आपको देखना है कि यार आखिर इन दोनों के बीच में जो भावना है, मान के चलो ये पैराग्राफ 1 है आपका, ये पैराग्राफ 2 है आपका, इन दोनों के बीच का जो लिंक है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप को ब्रिज कर रहा है वो आखिर कौन है, दैट इज व्हाट द अजम्पशन इज, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रेमाइज बोलता है दैट कंपनी प्रॉफिट्स आर इन हैव इंक्रीज्ड आफ्टर रिमोट वर्क स्टार्टेड, ओके। कंक्लूजन बोलता है दैट रिमोट वर्क इंक्रीज्ड कंपनी प्रोडक्टिविटी। दोनों का अंडरलाइंग assumption क्या हो, दैट एम्प्लॉइज वर्कड मोर एफिशिएंटली रिमोटली, विच इज वाई यू कैन से कि भैया ये मेरा assumption हो जाएगा। नेगेशन टेक्निक ऑलवेज इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज आपने ऑप्शंस को आइडेंटिफाई किया, जो बोला जा रहा है उसका उल्टा कर दो, बोला गया है प्लस तो माइनस कर दो, बोला गया है माइनस तो प्लस कर दो। अगर ये क्रिया करने पे, ये हरकत करने पे, ये चीज करने पे, या एक्टिविटी करने पे आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आपका जो ऑप्शन है वो कोलैप्स कर रहा है, देन दैट इज योर करेक्ट आंसर, एंड दैट इज व्हाट द assumption दैट यू वर फाइंडिंग वाज। अगर आर्ग्यूमेंट वीक हो रहा है देन आपका वो करेक्ट assumption है, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अभी तक इतना जो अपन पढ़े, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का? No, Casey, in this Okay, one. now I need you all to do one thing on the basis of today's understanding, you guys have to solve, देखो जीमेट क्लब में जाना, ठीक है, उसमें बोलना क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस दे दो। महेश आई गेस आप उसको एक बार ना जीमेट क्लब की लिंक डाल दीजिएगा आप ग्रुप में, महेश, ठीक है? ठीक है, मैं डाल तो दूंगा, अभी डाल हाँ दूंगा बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो क्वेश्चंस करेंगे ना, आप उनका बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करना बस, ठीक है। आप उनकी लिंक डालते जाना ग्रुप में, आपने मान के चलो सज्जाद 1947 है 1997 है शायद वो, है ना, उसके क्वेश्चंस किए, आई वुड रेकमेंड उसी के करो, सज्जाद के बढ़िया रहते हैं उसके, ठीक है। उसके क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन हो गया, आपने ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, ठीक है, डिस्कशन वाली फोरम में। ठीक एंड है, ठीक। the people who are listening to the recording, I want you all to solve those questions on the basis of आज अपन ने जो किया है। स्ट्रेंथन वीकेंड वाले मत करना, जितना अपन किए हो उसके बेसिस पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ना। ठीक थैंक यू। ठीक।